اس کا داخلہ اسکول میں دوبارہ ہو گیا تھا اور اس دفعہ اسے 9ویں جماعت میں دلوایا گیا تھا داخلہ۔ اپنے اسکول کے بچوں میں وہ خاصا بڑا سا لگتا تھا، کیونکہ اس کے 2 سال تو ویسے ہی ضائع ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ پڑھنے والے بچے اس سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ کلاس کے دوران بریک ہوتی تو وہ بھی سب بچوں کے ساتھ کلاس سے باہر نکل آتا۔ باہر طویل راہداری کے آخری سرے پر مڑنے کے بعد ایک تنگ سی گلی تھی جس سے گزر کر کینٹین آیا کرتی تھی۔ اس نے بھی اپنے قدم کینٹین تک جاتے راستے پر موڑے اور پھر ایک ریلے کے ساتھ چلتا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ گراؤنڈ میں ایک جانب لڑکوں کا رش سا تھا۔ اس نے نظر انداز کر کے قدم آگے کی جانب بڑھائے، مگر پھر گویا وہ برف بن گیا۔ کھلے میدان کے ایک طرف لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے اور اس سے آگے کی جانب درمیان میں ایک جالی کے آر پار 2 لڑکے بیڈمنٹن میں مگن تھے۔ میدان کے اس طرف کرکٹ میچ ہو رہا تھا، مگر اب لڑکوں کے جم غفیر کے باعث اسے کہیں بھی میچ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر اس کی نظر جھنڈ کے اس پار گرے لڑکے پر پڑی جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور اوپر سے لڑکے اسے لاتوں سے بار بار منہ پر ضرب لگا رہے تھے۔ اس نے سر نفی میں ہلا کر خود کو روکا، پھر آگے بڑھتا گیا تیز قدموں سے، مگر پھر اس سے برداشت نہ ہوا۔ دانت جما کر اسی تیزی کے ساتھ مڑا اور پھر لڑکوں کے بنائے گئے حلقے تک پہنچا۔ وہ نیچے گرا تھا اور بختیار اس کے چہرے پر مسلسل اپنے جوتے سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اس کا خون کن پٹی میں ابلنے لگا، لڑکوں کے جھنڈ کو گویا چیرتا۔ وہ مارنے والوں کے سر پر پہنچا اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے اختیار ان پر پل پڑا۔ جو مار رہا تھا اس کو پیچھے شرٹ سے جھپٹا اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ لڑکا سوکھا سڑا سا تھا، اڑتا ہوا دوسری جانب گرا اور پھر گھسٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کے دوسرے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر جو بھی اس کے سامنے آیا اس نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ مار مار کر ان لڑکوں کا اس نے حشر بگاڑ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے ادھر ادھر کراہتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے۔ اس نے نیچے گرے لڑکے کو ایک نظر دیکھا اور سب کے درمیان سے نکل آیا۔ اپنے پیچھے اسے لڑکوں کے تالیاں بجانے اور اس کے حق میں کوئی نعرہ لگانے کی آواز آئی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ دوسرے دن جب وہ اسکول آیا تو سب نامحسوس طریقے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے خوف سے سر جھٹک کر قدموں کو آگے بڑھایا۔ لوگوں کی نظروں کا مرکز بننا اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کلاس میں بھی سب کا یہی حال تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے لڑکے اسے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ اسے اپنے کیے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا اور نہ کوئی ملال۔ وہ کسی کو آئندہ ایسے دیکھے گا تو وہ ان کو اسی طرح مارے گا، 1000 دفعہ مارے گا۔ وہ اپنے سامنے کبھی بھی ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ 9ویں جماعت میں ہی ہو گیا تھا۔ بریک ہوا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی کمی تھی یا وہ ذہین نہیں تھا، مگر اس نے اپنا حلقہ احباب انتہائی محدود کر لیا تھا، نہ ہونے کے برابر۔ کوئی اس کے ساتھ رہتا تو اس کی کمزوری جان لیتا اور یہ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا۔ سو اکیلا رہنا اس ساری اذیت سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ مگر پھر باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے وہی لڑکے کھڑے ہیں جو کل اسے پٹ چکے تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ راہداری میں موجود ہر لڑکا اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک لڑکا اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھ پر زخم آیا تھا، نیلا جامنی سا زخم۔ آنکھ سوج کر گویا ذرا باہر نکل آئی تھی۔ اس نے بے تاثر نظروں سے اس کی آنکھ کے زخم کو دیکھا اور پھر اسے۔ دور پیچھے اس کے اور بھی بہت سے دوست کھڑے تھے جن کے چہروں پر بھی اسی قسم کے نیل اور گہرے جامنی نشانات تھے۔ کل تم نے ہمیں مارا، یہ بات سوچے بغیر کہ ہم 7-8 تھے اور تم ایک۔ یہ سارا اسکول، بلکہ یہ سارے لڑکے جو تمہارے آس پاس کھڑے ہیں نا، یہ سب ہم سے۔ انگوٹھے سے پیچھے کی جانب کھڑے اپنے دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا وہ، ڈرتے ہیں۔ اور تم نے ہمیں اتنی بے خوفی سے مارا، جانتے بھی ہو کہ کیا انجام ہوگا ہم سے پنگا لینے کا۔ امیر باپوں کی بگڑی اولادیں تھی وہ، مگر اس نے اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ اسے ان باتوں سے اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ 2 قدم اس نے آگے بڑھائے تو وہ لڑکا بے اختیار پیچھے ہوا۔ اس کے عین سامنے رک کر اس نے اسے بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ مجھے پھنسانے سے پہلے تمہیں اپنا جرم بتانا پڑتا، جو کہ تم نے بتانا نہیں تھا، سو میں تم سے نہیں ڈرتا۔
चबा चबा कर कहा उसने। और तुम जितनी दफ़ा मेरे सामने किसी को भी ऐसे मारोगे तो मैं भी उतनी ही दफ़ा तुम्हें मारूंगा, 1000 दफ़ा मारूंगा। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आखिर में सर झटक कर साइड से निकलता कहकर चला गया वो। और फिर उस दिन के बाद कभी वो लड़के उसके सामने नहीं आए और ना कभी दोबारा उन्होंने किसी को मारा पीटा। उस दिन उसे एक बात समझ आ गई थी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से क्यों बेहतर होती है। अगर कोई आप पर शेर होकर गुर्राए तो जवाबन आप भी उसी तरह धाड़ें, उसका रूप झाग की तरह बैठ जाएगा। ये उसने उस दिन सीख लिया था। 1-2 दिन बाद जब सब उस बात को भूलने लगे तो क्लास के दौरान वो वॉश बेसन पर झुका अपना चेहरा धो रहा था। जब किसी एहसास के तहत उसने सर उठाकर देखा, चेहरे पर मुंदमिल जख्मों के निशान लिए वो प्यारा सा लड़का बिलाशुबा वही था जिसे उसने उस दिन बचाया था। वो दरवाजे में खड़ा उसी को देख रहा था। उसने आस्तीन से चेहरा साफ किया और सीधा हो गया। आंखें अब तक रोने के बाइस सुर्ख हो रही थी और चेहरा कदरे गुलाबी। वो खामोशी से उसके पीछे आया और फिर हाथ में पकड़ा टिशू उसकी जानिब बढ़ाया। जब उसने टिशू के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो वो बोला, बाथरूम में छुपकर जब रोते हैं ना तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपकी हिचकियों की आवाज़ भी बाहर ना जाए। क्या तुम्हें किसी ने बिना आवाज़ के रोना नहीं सिखाया? उसने उसके हाथ से टिशू लिया और फिर कोई भी बात किए बिना साइड से निकलने ही लगा था कि वो बोला, उस दिन के लिए थैंक्स। वो रुक गया। फिर भी तुमने उन्हें ठीक तरह से नहीं मारा। अब के उसने नासमझी से पलट कर उसे देखा था। वो लोग अभी तक अपनी टांगों पर सलामत चल फिर रहे हैं और जब हंसते हैं तो पूरे दांत दिखाई देते हैं उनके। टांग नहीं तोड़ी थी तो दांत ही तोड़ देते किसी एक का। हंसते हुए एक होल कितना अच्छा लगता। उसके संजीदगी से कहने पर वो बेख्तियार हंस दिया था। इतना हो रहा था तो खुद क्यों नहीं मारा तुमने उन्हें? वो कंधे झटक कर कहता बाहर निकला तो लड़का उसके पीछे आया। वो उससे 1-2 साल छोटा था। मुझे एक्शन देखने का ज़्यादा शौक़ है। वजाहत दी गई तो वली ने रुक कर उसे देखा। ये तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम कोई लीमिन नहीं हो जो तुम्हारे पीछे आऊँगा। वो अपने रास्ते से जा रहा था। उसने गालिबन किसी कोरियन अदाकार का नाम लिया था। वो सर झटक कर आगे बढ़ा मगर लड़का उसके साथ साथ था और फिर ऐसे ही होने लगा। वो असगर नामी लड़का उसके साथ साथ रहने लगा। कभी वो उसके बराबर में बैठ रहा होता और कहता कि ये सीट तुमने ख़रीदी तो नहीं है ना, सो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम वहाँ दूर इशारा करता, मगर फिर खाली जगह ना होने के बाइस कहीं और देखता, नहीं वहाँ। फिर मायूस होकर कहता, बल्कि तुम यहीं बैठे रहो, मुझसे मसला है तो ये किताब रखी है ना, अपना चेहरा इसमें घुसा लो। मज़े से कहकर वो टांग झुलाने लग जाता और वली सब्र का घूंट पीकर रह जाता। अगले रोज़ वो उसके साथ चलने लगा तो उसने गर्दन फेर कर उसे देखा। उसने भी उसी ढिठाई से उसे देखा। क्या मसला है? मैं तो अपने रास्ते से जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? रुक कर पूछता। वली ने सर नफ़ी में हिलाया और आगे बढ़ता गया। वो कैंटीन में बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता तो वो दूर से उसका नाम लेकर ज़ोर से चिल्लाकर हाथ हिलाता। वो खिफ़त से आसपास देखता, नहीं यहाँ कोई और वली होगा। हड़बड़ा कर सर झटकता मगर फिर वो उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ रहा होता तो उसकी तेवरी चढ़ती। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ तुम्हें, बहरे हो क्या? इंतहाई खफगी से कहकर वो उसकी कोल्ड ड्रिंक उठाता और घटाघट अंदर। तुम्हारा मसला क्या है? एक दिन उससे उसने पूछ ही लिया। मेरा तो कोई मसला नहीं। हाँ, मेरी मम्मी कहती थी मैं खुद सबसे बड़ा मसला हूँ। बिल्कुल ठीक कहती हैं वो। उसने भी तड़क कर कहा तो असगर का चेहरा बुझ गया। वो है नहीं, थी। 1 साल पहले मर गई। कैंटीन में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं अपने बाबा के साथ रहता हूँ। आहिस्ता से उसने वजाहत दी और अपना बैग लिए वहाँ से उठ गया। अब के वली उसके पीछे गया था। वो मैदान के एक जानिब कतार में बनी संगी बेंच पर बैठ गया था। उसके सर के ऐन ऊपर एक दरख्त था जिसकी शाखें पूरी तरह से उस बेंच पर झुकी हुई थीं, ऐसे कि उस पर बैठा इंसान दूर से नज़र नहीं आता था। वो खामोशी से उसके साथ आकर बैठ गया। आई एम सॉरी, उसने आहिस्तगी से कहा तो असगर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। एक शर्त पर, अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे तो। उसने हाथ बेसाख्ता आगे बढ़ाया तो उसने पता नहीं कैसे वो हाथ थाम लिया और फिर उसकी और असगर की दोस्ती का उस दिन आगाज़ हो गया। वो इंतहाई बातूनी था।
हर वक्त कोई ना कोई किस्सा वली को सुना रहा होता। और एक तो उसकी बातें, वो ज़्यादा ड्रामे देखता था। उसे सबसे ज़्यादा कोरियन ड्रामास पसंद थे। कभी कभी वली उकता कर कहता, ड्रामे लड़कियां देखती हैं अस्कर। उसकी बात पर वो बुरा माने बगैर ढिठाई से नाक से मक्खी उड़ाता। एक रिसर्च के मुताबिक ड्रामे देखने वाले लड़के इंतहाई ज़हीन और समझदार होते हैं। वो एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन के लिए फिर कहीं और नहीं जाते, बल्कि अपनी उस बेहतरीन आदत की वजह से वो अपनी तन्हाई का इलाज खुद करते हैं। और जो लोग उसकी जानिब तुम क्या जानो वाली नज़र से देखकर आंखें घुमाता, वो फिर से कहता, और जो लोग ये कहते हैं कि ड्रामे देखना सिर्फ लड़कियों का काम है, तो मैं आपको एक बात बता दूं वली सर, कि आप निहायत ही बैकवर्ड और पेंडू हैं। ये रिसर्च भी यकीनन तुमने ही की होगी। उसने अच्छा वाला अबरू उठाया। बिल्कुल, कोई शक? वो टेबल पर हाथ मार कर कहता तो वली नफ़ी से सर हिला जाता, तो वली नफ़ी में सर हिलाता उठ जाता। उसमें उसे कोई शक नहीं था कि ये रिसर्च उसी ने की थी। वक्त आगे से आगे गुजरता चला गया। उसके एंग्जाइटी अटैक्स बढ़ते जा रहे थे। वो क्लास में घंटों घंटों गायब रहता, और जब असगर उसे ढूंढता तो वो वॉशरूम में खड़ा रोता हुआ मिलता। उसका ट्रॉमा इतना गहरा था कि कभी कभी वो चकराते सर की वजह से वॉश बेसन पर झुका कह कर रहा होता, तो असगर परेशानी से उसकी पीठ मसलता, उसका चेहरा धुलवाता, निढाल से वली को पकड़कर मैदान में बने बेंच तक लाता। यह उसका तकरीबन रोज़ का मामूल था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। अटैक्स कम हो गए। उसने समझौता कर लिया था। अगर उस वक्त उसके पास असगर ना होता तो वाकई ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल हो जाती। हवेली के हालात भी अब साजगार जा रहे थे। जब से उसके साथ वो हादसा हुआ था, तब से बख्तियार और निसार ने उसे तंग करना छोड़ दिया था। स्कूल ख़त्म हुआ तो कॉलेज आ गया। कॉलेज में भी वो इतना ही कमगोर संजीदा था, मगर असगर वैसा ही बातूनी था। कॉलेज में होते हर स्कैंडल की खबर होती उसे। उसकी तबीयत के लिए असगर बिल्कुल ठीक था। वो बोलता था और वली सुनता था। कॉलेज ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी का दौर आया। वो बड़ा होता गया, और फिर एक दिन जब वो छत पर बैठा अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा था, तो उसके साथ वो वाक़या पेश आया जिसने उसकी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया था। अमल उससे 4 साल छोटी थी, और उस वक्त वो फर्स्ट ईयर में थी। वो उस वक्त शायद नहाकर छत पर आई थी। हब्स और गर्मी होने की वजह से वो सरे शाम उस पहर नहाई थी। वली चूंकि एक जानिब रखे झूले पर बैठा था, इसलिए उसने वली को नहीं देखा था। उसने तौलिए से बालों को आज़ाद किया और फिर एक जानिब को गर्दन घुमाई, तो ढेर सारे बाल घूमकर उसकी कमर पर झूल गए। वो जो किताब खोले उस पर मार्कर से निशान लगा रहा था, यकदम चौंक कर दूसरी जानिब बनी डेवड़ी की तरफ देखने लगा। वो लेमन कलर के नफीस से लॉन के सूट में मलबूस बेखबर सी नीचे से सब्जाजार को देख रही थी। उसकी आंखें जैसे उन नम से लंबे बालों में उलझ कर रह गई थी। मगर फिर वो यकदम घबरा कर खड़ा हुआ। उसकी गोद में रखा मार्कर नीचे जा गिरा था। अलबत्ता किताब उसके हाथ में ही थी। आवाज़ पर अमल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था, और फिर उसे देखते ही उसकी शहद रंग आंखें गोया फैल सी गईं। वली खुश्क लबों पर जुबान फेरता गर्दन झुकाए अजीब से मखमसे में खड़ा रह गया। उसे आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। अमल ने उसे देखते ही रुख फेरा और फिर दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त किया। वो भी एकदम अजीब सी हुई थी। छत पर मौजूद शाम की फिजा में कोई एहसास था जो तहलील होने लगा था। कुछ लम्हे यूं ही हवेली पर उतरती शाम में गिरकर पिघलते गए, तो वो खंकार कर आगे बढ़ा। उसी पल वो मुड़ी थी जाने के लिए, और यकदम वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल आ गए थे। बिल्कुल वली की निस्वारी आंखों में कम उम्री की मासूमियत थी, और अमल, वो तो जैसे उसे इतने करीब से देखकर कुछ बोलना ही भूल गई थी। जुबान के अल्फाज तो बाद में आने थे, मगर उसकी तो आंखें ही गोया वली की आंखों पर साकित हो गई थी खामोशी से। वो कब वली के दिल में उतरी उसे पता ही ना चला। वो चंद पल थे, वही चंद लम्हे। फिर वो एकदम चौंक कर एक तरफ हुआ, तो उसी वक्त अमल उसी तरफ हुई। वो फिर से मुकाबिल आ गए थे। एक बार फिर वो दूसरी तरफ हुआ तो अमल भी उसी तरफ हुई। सब कुछ गैर इरादी था और इतनी तेज़ी से हो रहा था कि वो दोनों बौखला गए। फिर वली ने जैसे गहरा सांस लेकर हाथ उठाए। अमल की गर्दन में गिल्टी उभर कर मादूम हुई थी। उसके हाथ होले से कांप रहे थे, और दिल तो लगता था कि अभी बाहर आ गिरेगा।
वली के मलबूस से उठती महक ने गोया उस पूरी शाम को मुअत्तर कर दिया था। वो खुमार आलूद सी होने लगी। वो एक तरफ हुआ और झुकी नज़रों को उसने दोबारा उठाने की गुस्ताखी नहीं की। वो तकरीबन भागती हुई जीनों की तरफ बढ़ी थी। भागने से उसके सियाह लंबे बाल कमर पर झूल झूल से जाते थे। उसने दिल पर हाथ रखकर गहरा सांस खारिज किया और फिर पलटकर छोटी दीवार पर हाथ रखता झुका। चंद लम्हों में सब कुछ उथल पुथल हो चुका था। वहाँ लफ्ज़ नहीं थे। उसने करीब से उसकी आंखें देखने की गलती की थी। चंद पल लगे और वो पूरे का पूरा तहस नहस हो गया। उसे क्या पता था कि वो उसे यूं बेबस कर जाएगी। कितने ही पल वो उस उतरती मगरिब में छत पर खड़ा रहा। यूं लगता था कि नीचे जाएगा, लोगों का सामना करेगा तो वो उसके अंदर मची क़यामत को भांप लेंगे, उन लम्हों को पकड़ लेंगे जो उसने अभी गुजारे थे ज़िंदगी में पहली मर्तबा। उस रात खाने पर ना अमल आई और ना वली आए। इन्हें क्या हुआ? बीजान ने हैरत से कहा था। अब उन्हें कोई क्या बताता कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या होना बाकी रह गया था। वो उस पूरी रात जागता रहा था। नींद उसकी पहले भी बहुत कच्ची थी, मगर अब तो जैसे बिल्कुल ही ना आने का तहैया किए बैठी थी। उसने गहरा सांस लेकर जैसे अंदर होती अफरा तफरी को बाहर निकाला था, मगर फिर ये उसकी खाम ख्याली ही थी कि वो उसे भुला देगा। आज तक वो उसे नहीं भुला सका था। 19 साला वली की मोहब्बत ने उसे ज़िंदगी के अगले कई सालों तक जगाना था। अगली सुबह भी वो दोनों गोया एक दूसरे से छुपते रहे थे। उसे उस वक्त नहीं मालूम था कि वो उससे क्यों छुप रहा था, मगर हाँ, वो उसका सामना करने से खौफज़दा हो रहा था। वो उसके सामने जाकर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था और शायद अमल भी यही सोच रही थी जब भी वो उसके सामने नहीं आई थी। उसके एंट्री टेस्ट में अभी कुछ दिन थे, इसीलिए वो या तो सारा दिन पढ़ाई कर रहा होता या फिर सरदार बाबा के साथ डेरे पर होता। उस शाम खिलाफ़े मामूल ज़मान डेरे से ज़रा जल्दी वापस आ गए थे और वली भी उनके साथ ही था। शायद मौसम ख़राब था, इस वजह से उन्होंने जल्दी आने का फ़ैसला किया था। आसमान गहरे सुरमई बादलों से ढका था। तेज़ ठंडी हवा से गर्मी का ज़ोर यकदम टूट सा गया था। वो उनके साथ ही गाड़ी से उतरता अंदर हवेली की जानिब बढ़ा तो बौछार शुरू हो गई। बारिश यकायक तड़ातड़ बरसने लगी, बहुत तेज़ी के साथ, शदीद गरज चमक के साथ। वली, जाओ पीछे गैराज से ज़रा मेरा बैग तो लाओ जो मैंने तुम्हें दिया था कल। उनके इशारे पर वो गैराज की जानिब बढ़ा था। वो हवेली की 4 दीवारी में बना गैराज था, मगर हवेली की पिछली जानिब बना था, जहाँ आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, किसी की हिचकियों से वो पल भर को जैसे बर्फ़ हुआ था।